નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરી આપણે ઉત્તર પ્રદેશથી. તો ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે જીએસટી સુધારા ઉપર કહ્યું કે આ દેશના અર્થતંત્રને નવી ગતિ આપશે. આ એક દૂરગામી નિર્ણય છે. સીએમ યોગીએ કહ્યું કે વડાપ્રધાન મોદીના દૂરદેશી નેતૃત્વમાં ભારતની કર વ્યવસ્થા એક નવી યુગમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. સ્વતંત્રતા દિવસની અવસરે પ્રધાનમંત્રીએ દેશવાસીઓ સમક્ષ રાખેલો નેક્સ્ટ જનરેશન જીએસટી રિફોર્મનો સંકલ્પ આજે સાકાર થઈ રહ્યો છે. આ માટે પ્રધાનમંત્રી અને નાણામંત્રીને અભિનંદન. હવે જીએસટીમાં ફક્ત બે મુખ્ય સ્લેબ 5 અને 18% હશે. આ નવો અધ્યાય ખેડૂતો, મહિલાઓ, યુવાનો, એમએસએમઈ ક્ષેત્ર અને નાના વેપારીઓને નવી તાકાત આપશે. ખાદ્ય, દવાઓ, શૈક્ષણિક સામગ્રી પર 0 થી 5% ઘરેલું અને બચાવશે અને આ વેપારીઓ માટે એક ટેકો હશે અને વ્યવસાય કરવામાં સરળતા નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચશે. प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है. स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है. यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी. સમાચારોમાં આગળ હવે વાત કરીએ આપણે આ તરફ ઉત્તર પ્રદેશના બરેલીની. તો બરેલીમાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ એટલે કે એબીવીપી ગુરુવારે કલેક્ટર કચેરી પહોંચી અને બારાબંકીની રામ સ્વરૂપ મેમોરિયલ યુનિવર્સિટીમાં લાઠીચાર્જનો વિરોધ કર્યો છે. આ પછી અધિકારીઓએ સિટી મેજિસ્ટ્રેટ અલંકાર અગ્નિહોત્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. જણાવી દઈએ કે એબીવીપી કાર્યકરોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે પોલીસે યુનિવર્સિટીમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને કાર્યકરો પર ગેરકાયદેસર રીતે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો. એબીવીપી મહાનગર મંત્રી આનંદ કથેરિયાએ આ ઘટનાને અત્યંત નિંદનીય અને અમાનવીય ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે યુનિવર્સિટીમાં કાયદાનો અભ્યાસક્રમ યોગ્ય નવીનીકરણ અને પરવાનગી વિના ચલાવવામાં આવી રહ્યો હતો અને જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે રમત રમાઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું કે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ તાજેતરમાં યુનિવર્સિટીને શરતી પરવાનગી આપી છે, જે સાબિત કરે છે કે આ કોર્સ અગાઉ ગેરકાયદેસર રીતે ચાલી રહ્યો હતો. એબીવીપીના વિભાગ સંગઠન મંત્રી અવની યાદવે મુખ્યમંત્રીને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા અપીલ કરી છે અને જણાવી દઈએ કે દોષિતો સામે કાર્યવાહી અને યુનિવર્સિટીની તપાસની માંગ પણ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે લાઠીચાર્જમાં સામેલ પોલીસ કર્મીઓ અને બહારના ગુંડાઓ સામે કેસ દાખલ કરીને કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. કાયદાના અભ્યાસક્રમના ગેરકાયદેસર સંચાલનની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ. આ ઉપરાંત લેટ ફી, સમાજ કલ્યાણ ફી અને અન્ય નિર્ધારિત ધોરણોની પણ તપાસ થવી જરૂરી છે. आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और शांतिपूर्वक हम लोग कोई यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं. आप देखिए हमारे साथ हजारों संख्या, सैकड़ों संख्या में छात्र हैं और अपनी एक जायज मांग हम लोग रखने आए हैं, न कोई बिना जायज. हम लोग विधि के छात्र हैं. मैं हरिचंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से विधि का छात्र हूँ वहाँ पे. और जो एसआरएमयू में हुआ घटना हमारे साथियों के साथ, जो विद्यार्थी परिषद साथियों के साथ मारा गया, उसके विरोध प्रदर्शन करते हुए आज हम एसआरएमयू की विश्वविद्यालय की जो मान्यता है निरस्त करने के लिए हम लोग आए हैं मांगे. शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है और यहाँ कातिल ही लुटेरे और कातिल ही सिपाही है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है, वहीं पर यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो शिक्षा मंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी व्यवस्था कराना चाहते हैं, शिक्षा प्रणाली को एक सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश में ये विश्वविद्यालय श्री राम मनोहर मेमोरियल विश्वविद्यालय जहाँ पर एलएलबी की पढ़ाई को लेकर के, इसकी मान्यता को लेकर के मान्यता 3 साल पहले ही रद्द कर दी गई थी. उसके बाद भी कंटिन्यू छात्रों के साथ विश्वासघात किया जाता था, छात्रों के साथ अधिक फीस ली जाती थी. સમાચારોમાં આગળ હવે આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના સોનભદ્રની. તો સોનભદ્રમાં યુરિયા ખાતરની અછતથી ખેડૂતો પરેશાન છે.
સહકારી મંડળીમાં ખાતરનો પુરવઠો ઓછો હોવાથી ખેડૂતોને કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે છે। ત્યારે જણાવી દઈએ કે ખાનગી ખાતર વેચનારાઓ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ રહ્યા છે। તેઓ સરકારી ભાવ કરતાં વધુ રૂપિયામાં યુરિયાની થેલીઓ વેચી રહ્યા છે। ત્યારે જણાવી દઈએ કે ખેડૂતો પાક બચાવવા માટે મોંઘા ખાતર ખરીદવા મજબૂર બન્યા છે। ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે સમિતિઓમાં ખાતર ઉપલબ્ધ નથી અને ખેડૂત નેતાઓએ ચેતવણી આપી છે કે જો પુરવઠો ટૂંક સમયમાં વધારવામાં નહીં આવે તો તેઓ વિરોધ કરશે। ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકારે ખાતરનો પૂરતો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવો જોઈએ। આ ઉપરાંત કાળા બજાર પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ અને જેથી ખેડૂતોને રાહત મળી શકે। खाद के लिए हम कॉपरेटिव पे 4 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं। धक्का देकर वहाँ से भगाया जा रहा है कि खाद नहीं है ये है, और ब्लैक कर रहे हैं प्राइवेट के हाथ में। उसके बाद कोई हमको बताया, चले गए नई बाज़ार चतरा होते हुए, रामगढ़ होते हुए, नहीं कहीं खाद मिला। भटकते भटकते चले गए हम वहाँ किरहुलिया बैरियर पर। वहाँ हमको किसी भी प्रकार से 2 बोरा खाद हमको वहाँ उपस्थित हुआ। खाद हम ले आए थे जमुना और बबलू। कौन जगह से? रामगढ़ से। तो कितना का पड़ा आपके? हमें 570 रुपया को मिलल, लेकिन वह 2 दिन लाइन लगौले के बाद खाद मिलल 500 रुपया बोरी। हाँ, तो 500 रुपया और संगे कुछ चले हुआ खाली नहीं दिले हुआ जिंक या सल्फर। सूचना मिल रही है तो तुरंत हम लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। और उसमें अभी तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, 14 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 17 दुकानों का निलंबन किया गया है, 5 दुकानों का निरस्तीकरण किया गया है और 4 दुकानें सीज की गई हैं और 2 FIR भी की गई हैं। मतलब दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि ज़बरदस्ती टैगिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसान मांगता है तभी आपको देना है, और अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र जिले में खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान है और एक तरफ जहां सहकारी समितियों पर खाद न मिलने से किसानों को की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट दुकानदार इसका मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्राइवेट दुकानों पर जो खाद की बोरी 266 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से मिल रही है, वह प्राइवेट दुकानों पर 500 से लेकर 570 रुपए तक प्रति बोरी किसानों को मिल रहा है। और किसानों को इस बात के लिए भी मजबूर किया जा रहा है कि यह यूरिया खाद एक बोरी तभी मिलेगा जब उस पर 1 पैकेट जिंक और 1 पैकेट सल्फर किसान लेगा, जिसको देखते हुए लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग का कहना है कि अब तक 14 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है, 17 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि 5 दुकानों को निरस्त किया गया है और 2 दुकानदारों पर FIR भी दर्ज कराया गया है। लेकिन विभाग के इस कार्रवाई के बाद भी किसान को अभी भी ऊंचे दर पर खाद खरीदना पड़ रहा है और भले ही विभाग अपने कार्रवाई की लंबी फहरिस्त गिना रहा हो, लेकिन इस महंगाई का मार अभी भी किसान को उठाना पड़ रहा है। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। આ તરફ આપણે હવે વાત કરીએ મહારાષ્ટ્રની, તો મહારાષ્ટ્રના અત્યારે હાલ જે મહારાષ્ટ્ર સરકાર તરફથી જે એક નવી પહેલ કરવામાં આવી રહી છે, નેક્સ્ટ પહેલમાં અત્યારે આપણે એક નજર કરીએ કે મહારાષ્ટ્ર સરકાર તરફથી શું અત્યારે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, મહારાષ્ટ્ર સરકાર અત્યારે નવું શું કરવા જઈ રહી છે। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नेक्स्ट इन महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की सरकार राज्य में निवेश के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ही दिन में 17 कंपनियों के साथ 34,000 करोड़ रुपए का करार किया है, जिससे प्रदेश में करीब 33,000 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 17 नए समझौते किए हैं। इन समझौतों से प्रदेश में करीब 34,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक बस और ट्रक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सोलर और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में करीब 33,000 नए रोजगार उत्पन्न होंगे। उत्तर महाराष्ट्र के लिए 9,866 करोड़ रुपए के 5 करार, पुणे के लिए 11,966 करोड़ रुपए के 5 समझौते, नागपुर के लिए 11,642 करोड़ रुपए के 6 समझौते, रायगढ़ के लिए 3,000 करोड़ रुपए का 1 करार। निवेश से इन क्षेत्रों में नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी। ये ईवी में है, बस में, ईवी ट्रक में, सोलर मॉड्यूल में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीसीसी में, यानी हर प्रकार के एमओयूज ये आज हुए हैं और बहुत क्रेडिबल ऐसी इंस्टीट्यूशंस के साथ हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से महाराष्ट्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो काम हम कर रहे हैं उसके ऊपर लोगों ने विश्वास जताया। सबसे बड़ा समझौता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हुआ है। इस समझौते से महाराष्ट्र में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण होगा। प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए मराठा आरक्षण को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि इसका असर ओबीसी कोटे पर नहीं पड़ेगा। यह रिपोर्ट खास आपके लिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार की स्थिति साफ कर दी है। कोई भी कोटा कानूनी ढांचे के मुताबिक ही लागू किया जाएगा और इससे मौजूदा ओबीसी आरक्षण पर असर नहीं पड़ेगा। शिंदे ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता सबका विकास और सामाजिक सद्भाव है। किसी एक समुदाय के अधिकार छीनकर दूसरे को नहीं देंगे। उन्होंने मराठा समुदाय को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए चलाई जा रही सारथी और अन्ना साहेब पाटील आर्थिक विकास निगम जैसी योजनाओं का जिक्र भी किया। मराठा समाज बांधव भगिनींना माझी एकच नम्र विनंती आहे की जे काही आम्हाला करता येईल ते समाजासाठी आम्ही केलंय, यापुढेही करू, परंतु एवढंच आहे की समाजामध्ये कुठे तेढ निर्माण होणार नाही। ओबीसी समाजाचं कुठलंही आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला मिळावं अशी मराठा समाजाची देखील भूमिका नाही आहे आणि ती नसावी। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में मराठा समुदाय के लिए लागू किया गया 10% आरक्षण का लाभ आज भी मिल रहा है। पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लागू किया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड़ में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार राज्य में ग्रीन एनर्जी को लगातार बढ़ावा दे रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अधिकारियों से पिंपरी चिंचवड़ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के काम में तेजी लाने की अपील की है। योजना के तहत घर की छत पर सौर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगायचंय किंवा माझ्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरामध्ये राहत असणाऱ्या सोसायट्या ज्या आहेत, सोसायट्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरिक जे राहतात त्यांना ही योजना खूप चांगली आहे आणि त्याच्यामध्ये अक्षरशः त्यांनी तिथं ती योजना त्यांच्या टेरेसवर राबवली तर त्याच्यामध्ये हे मुफ्त बिजली योजना आहे आणि त्याच्यात खूप फायदा हा त्या नागरिकांना होणार आहे। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। महाराष्ट्र को नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। नांदेड़ से मुंबई के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन से नांदेड़ और मुंबई के बीच यात्रा का समय 2 घंटे कम हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की तीर्थ नगरी नांदेड़ से मुंबई के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इसे मराठवाड़ा क्षेत्र की समृद्धि का द्वार बताया। 2 घंटे कम हुई नांदेड़ मुंबई के बीच यात्रा की दूरी। 9.5 घंटे में अब पूरी होगी 610 किलोमीटर की यात्रा। 8 से बढ़कर 20 हुई ट्रेन के डिब्बों की संख्या। 500 की जगह 1440 यात्री कर सकेंगे सफर। आपल्या नांदेडवरून मुंबईपर्यंत वंदे भारत ट्रेन ही सुरू होते आहे। वंदे भारत ट्रेन माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात भारतीय रेल्वेने ज्या प्रकारे कात टाकून आंतरराष्ट्रीय स्तराची रेल्वे करण्याचा चंग बांधलाय त्याचंच उदाहरण म्हणजे ही वंदे भारत ट्रेन आहे।
यह ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इससे यात्रियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेशोत्सव के दौरान लोगों की गंभीर बीमारियों के मुफ्त जांच और इलाज के लिए श्री गणेश आरोग्य अभियान की शुरुआत कर दी है। गणेशोत्सव के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने श्री गणेश आरोग्य योजना शुरू की है। गणपति पंडालों में कैंसर, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। गंभीर बीमारी का पता चलने पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कक्ष की ओर से मरीज का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। माननीय देवेंद्र जी ने ये श्री गणेश आरोग्य का मीन्स अलग अलग हॉस्पिटल, जो हमारे अलग अलग स्कीम में जो हॉस्पिटल है उनको सबको आह्वान कराकर और सभी गणेश मंडल को हमने आह्वान किया कि आप ये उपक्रम चलाइए। इसके तहत जो भी वहाँ दर्शन करने आएगा तो वो अपना खुद का हेल्थ चेकअप भी कर लेगा और अलग अलग जो हेल्थ स्कीम है सेंट्रल और स्टेट की, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा। ठाणे की एक आदिवासी बस्ती में मीरा घोलप को मेडिकल कैंप में जांच के दौरान कैंसर का पता चला। उन्हें तत्काल वाशी के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका मुफ्त इलाज जारी है। मेरी मां मीरा पांडुरंगा गोलम के लिए हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री ने सही समय पर हाथ बढ़ाया, इसके लिए हमारा परिवार हमेशा आभारी रहेगा। 2900 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। गणेशोत्सव मंडल श्रद्धालुओं से जांच की अपील कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके। तो ये थी महाराष्ट्र की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। યુપીના મહોબા જિલ્લામાં પ્રેમ, સેક્સ અને વિશ્વાસઘાતના એક સનસનીભર્યા કિસ્સાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે, જ્યાં પ્રેમમાં આપેલા બધા જ વચનો અને વચનોનો છેતરપિંડી સાબિત થયા છે, જેને પ્રેમિકાએ ચોંકાવી દીધી છે। આ રિપોર્ટ જુઓ અને કળિયુગની આ વાર્તા સમજો। लव, सेक्स और धोखा, पहले प्यार फिर तकरार, लगी नौकरी मांगा दहेज, मांगा इंसाफ तो मिली गाली, आईटीबीपी जवान पर केस दर्ज। यूपी के महोबा जिले से लव, सेक्स और धोखे जैसी एक सनसनीखेज मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है, जहां प्यार में किए गए सभी कस्में और वादे एक फरेब निकला। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जहां बांदा जनपद की रहने वाली एक युवती ने महोबा के सदर कोतवाली में तहरीर देकर सुपा गांव निवासी शिवम यादव पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने बाद में दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है, जिस पर आरोपी प्रेमी सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का कहना है कि करीब 6 साल पहले अतर्रा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात शिवम से हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और शिवम ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बहाने उसे महोबा बुला लिया। आरोप है कि यहाँ शिवम और उसके मित्र राम सिंह कुशवाहा ने शहर में किराया पर एक कमरा दिलाया, जहाँ शिवम ने शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन प्रेमी के मित्र राम सिंह ने जबरन दवाइयां देकर गर्भपात करवा दिया। युवती का आरोप है कि एक बार शिवम पूरी रात उसके कमरे में रुका और संबंध बनाने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो वह उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया। जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो शिवम ने आईटीबीपी कांस्टेबल की नौकरी मिलने का हवाला देते हुए कहा कि अगर शादी करनी है तो 25 लाख रुपए दहेज देना होगा। दहेज की यह मांग सुनकर युवती आहत हो गई और सीधे शिवम के गांव पहुंची, जहां उसके पिता धर्मेंद्र यादव और भाइयों ने न सिर्फ गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकी भी दे दी। क्या घटना हो गई आपके साथ?
लड़का था शिवम यादव, सुपा का रहने वाला, ग्राम सुपा, जिला महोबा। तो मैं उससे बात करता था, शादी का झांसा दे के पास आता रहा। अब जब मैंने शादी के लिए बोला तो शादी से इनकार कर रहा है, कह रहा है कि मेरी नौकरी लग गई, मुझे 25 लाख दहेज दो तब मैं शादी करूँगा। उसका बड़ा भाई संदीप यादव जो मास्टर है, वो कह रहा है कि सर तुम मेरे भाई के बारे में कुछ भी या मतलब केस करोगी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूँगा। उसके मतलब पापा को भी पता, वो उसके गाँव भी गई मैं, तो गाली दे के उनने भगा दिया। कह रहे तो तुम ऐसी होती तो ऐसे गली गली नहीं घूमती फिरती। कितने साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 6 साल हो गए, 2019 से। किस पद में कार्यरत है आरोपी? वो ITBP में कांस्टेबल है, पोस्टिंग उसकी अरुणाचल में है। आखिरकार परेशान होकर युवती ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपी शिवम यादव पर दुष्कर्म और दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं उसके मित्र राम सिंह पर जबरन गर्भपात कराने की धाराएं लगाई गई है। शिवम के पिता और भाइयों पर गाली गलौज व धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। महोबा की अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और जांच शुरू कर दी गई है। साक्ष्य जुटाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदा जनपद से एक महिला आई थी, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि उनके साथ एक व्यक्ति ने शारीरिक संबंध बनाए, शादी का लगातार झांसा देता रहा। उसके बाद उसका चयन ITBP में हो गया तो उसने शादी से भी इनकार कर दिया। उपरोक्त तहरीर पर थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल यह पूरा घटनाक्रम साफ करता है कि युवती का 6 साल का रिश्ता प्यार नहीं बल्कि लव, सेक्स और धोखे की एक काली कहानी बन गया है और इंसाफ के लिए पीड़ित युवती दर दर भटक रही है। अब देखना यह है कि पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है। દેશ ટેકનોલોજીમાં ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યો છે અને આ જ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ હવે છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી માટે થઈ રહ્યું છે। ત્યારે આ તરફ આપણે વાત કરીએ તો આ ટેકનોલોજીનું છેતરપિંડી સ્વરૂપ ડિજિટલ ધરપકડ છે, જેના ડરથી લોકોને મૂર્ખ બનાવવામાં આવે છે અને છેતરવામાં આવે છે। આ રિપોર્ટ જુઓ અને છેતરપિંડી કરનારાઓના આ જાળને સમજો। डिजिटल अरेस्ट का जाल, रिटायर्ड प्रोफेसर बना शिकार, ठग लिए 1 करोड़ 2 लाख की रकम, ठग ने बताई अपनी पहचान, खुद को बताया CBI निदेशक और जज, फिर 7 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट। देश जिस तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब फ्रॉड और ठगी के लिए किया जा रहा है और इसी टेक्नोलॉजी का ठगी वाला रूप है डिजिटल अरेस्ट, जिसका डर दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और उनसे ठगी की जाती है। पूरा मामला नोएडा का है, जहां ठगों ने 52 साल के बुजुर्ग के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया। पूरे हफ्ते चले इस खेल में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर साइबर अपराधियों ने नोएडा में 92 साल के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के साथ 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित को ठगों ने 1 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर साइबर अपराधियों ने खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बताकर पीड़ित के नाम और फोन नंबर की पुष्टि की। फिर CBI निदेशक, पुलिस और न्यायाधीश बनकर डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से ठगी को अंजाम दिया। कंवर बुद्धेश्वर सिंह ने बताया कि वह एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर थे। रिटायरमेंट के बाद वह सेक्टर 30 में परिवार के साथ रहने लगे। उन्होंने आगे बताया कि बीते माह 26 अगस्त को उनके मोबाइल पर खुद को मुंबई पुलिस से बताकर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्य आरोपी नरेश गोयल हैं। करोड़ों रुपए के हेरफेर और लोगों से धोखाधड़ी में आप नरेश के साथ शामिल हैं। इसके बाद ठगों ने कहा कि यदि पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 10 मिनट तक पूछताछ करने के बाद ठगों ने बैंक और खाते संबंधी जानकारी लेनी शुरू की। पीड़ित को बताया जिस मामले में उसका नाम आया है उसमें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में न्यायालय के जज तुरंत मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
दूसरा शातिर जज बनकर कोर्ट रूम में बैठा था। उसने नरेश गोयल को ढूंढने के लिए उनके नाम जारी नोटिस को दिखाया। नोटिस देखकर प्रोफेसर काफी घबरा गए। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य ने सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग से कहा कि वह जांच में सहयोग करें, अन्यथा पूरा परिवार बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। प्रोफेसर पर खाते में रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाने लगा। शिकायतकर्ता से कहा गया कि जांच के बाद सारी रकम मूल खाते में वापस आ जाएगी। जो भी हो रहा है वह जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। नोएडा में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके सामने आपको एक नया मामला, ताजा मामला आपको बता देते हैं, जो नोएडा के सेक्टर 30 से आया है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति से करीबन 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। बुजुर्ग व्यक्ति पेशे से प्रोफेसर बताए जा रहे हैं, वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और बुजुर्ग हैं, करीबन उनकी उम्र 93 वर्ष बताई जा रही है। वो नोएडा के सेक्टर 30 में रहते हैं। साइबर ठगों के द्वारा उन्हें पहले ट्राई का अधिकारी बन के कॉल किया गया, उनके फोन की डिटेल्स ली गई। फोन की डिटेल्स लेने के बाद उन पे लगातार व्हाट्सएप पे कॉल्स आने लगी, जिसमें उन्हें पुलिस, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर बन के पहले कॉल की गई। उससे उनसे बात की, उसके बाद जज की कॉल आने लगी। कथित सीबीआई डायरेक्टर ने भी उनसे बात करी और उनसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए करीबन 4 खातों में ट्रांसफर करा लिए गए। उसके बाद उन्हें 23 दिन में पैसे वापस करने का आश्वासन भी दिया जाता है कि 23 दिन में आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस दौरान बुजुर्ग को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उन्हें 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के दौरान वीडियो कॉल पे उनकी निगरानी की गई। उन्हें बाहर जाने की लिमिटेड इजाजत दी गई। वो उस दौरान बाहर नहीं जा सकते थे, बहुत लिमिटेड इजाजतें थी। ज्यादा लोगों से बात करने की उन्हें मनाही थी और ये करीबन 7 दिन तक ऐसा चलता रहा। बुजुर्ग को जब इस बात की भनक लगी कहीं उनके साथ साइबर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उन्होंने नोएडा साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इसमें आगे की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो पुलिस अभी इसमें संबंधित बैंकों से बात कर रही है और जो जिन खातों में वो अमाउंट ट्रांसफर कराया गया था उन्हें फ्रीज कराने की कवायद तेज कर दी गई है। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.